Welcome back to our channel. Today we are going to start our earlier chapter pair of linear equation in two variable. This is lecture number 4. And what about this exercise 3.2? What to do here? Look at it exactly. On comparing the ratio a1 by e2, b1 by b2 and c1 by c2, find the following pair of equations. Are those consistent or inconsistent? That we have to find here. We have already pair of linear equation, example 1 and example 2. By this example we will be able to find that are those equations are consistent or inconsistent. But friends, first we should know that which kind of equations are known as consistent equation and inconsistent equations. So friends, remember the lines having at least one solution. Remember what I want to say. A lines having at least one solution called consistent equations, and lines having no solution called inconsistent solutions. So friends, we know we have intersecting line, parallel lines and coincident lines. So intersecting line having always unique solution. So if we found are these equations are intersecting line, then we will say that those are consistent. Okay, if we found that they are coincident line, we know that coincident lines having infinitely many solutions, so those are also consistent equations. But if we found parallel lines, so we know that parallel lines having no solution, so parallel lines are always inconsistent. Okay, so let me check what to do. We have to check this ratio a1 by e2, b1 by b2 and c1 by c2. Okay friends, so first we will find that what's about a1 equal to 3, a2 equal to 2. Okay, what is a1 and a2? Coefficient of x, always a1 and a2. Now look at here, what is b1? So coefficient of y, that will be 2. b2 equal to minus 3. Look at here, this is minus 3. c1 equal to 5. If I write by this way, minus 5 equal to 0, minus 7 equal to 0, then this will be minus 5 and c2 equal to minus 7. Okay, let me check what's about a1 by a2. That will be 3 by 2. Okay, what's about b1 by b2? That is 2 by minus 3. Okay friends, look at here, the ratio of a1 by a2, that is 3 by 2, and the ratio of b1 by b2, that is equal to minus 2 by 3. They are not equal, so we can say a1 by a2 not equal to b1 by b2. We should know that whenever we have condition a1 by a2 not equal to b1 by b2, if this condition is satisfied, then only we can say lines are intersecting line, and intersecting line always having unique solutions, and it has solution, that's why they are consistent. Here lines are intersecting. Okay, intersecting lines, what we can say, unique solution, that's why they are consistent. Okay, so first pair of linear equations are consistent. Okay, look at this second. What about second? Let's repeat our procedure. a1 by a2, that will be 2 by 4. a1 equal to 2 and a2 equal to 4. So a1 by a2 equal to 2 by 4. And what's about b1 by b2? b1 equal to minus 3 and b2 equal to minus 6. What's about c1 by c2? That is equal to, if I write by this way, minus 8 equal to 0 and minus 9 equal to 0. So that will be minus 8 and minus 9. Okay, so a1 by a2, that equal to 1 by 2. 2 2s are 4. What's about b1 by b2? Minus minus cancel हो जाएगा. 3 by 6 है, so 3 2s are 6, that is also 1 by 2. Okay, so a1 by e2 equal to b1 by b2, but not equal to c1 by c2, because c1 is 8 and c2 is 9, so 8 by 9 is not equal to 1 by 2. That's why this is minus 8 by minus 9. So here which condition is going to be satisfied here? a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2.
And friends, you know that whenever we have condition like this and equations are going to be satisfied this, only we can say lines are parallel. Okay, because coincident lines की condition क्या है, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. If this condition satisfied, then we can say lines are coincident. But we have a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, so lines are parallel. Okay, lines are parallel. We know that parallel lines having no solutions, so we will write no solution. And if we are getting no solution, that's why lines are inconsistent. Okay, so friends, very simple. We have to check that are those consistent or inconsistent. We will check if lines are intersecting line, then also consistent. If they are coincident, also consistent. But if lines are parallel, then parallel lines having no solution, then only case we will say lines are inconsistent. Okay friends. Okay friends, look at the question number 5. That is also word problem. Look at what is written here. Half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension. मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन हमें दिया हुआ है लाइक दिस, इस तरह से रेक्टेंगल शेप में है, वो भी बोल दिया है. ठीक है, मानो कि एक ये गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में, हमें डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है. सपोज कर लो मैंने लेंथ x मान ली और ब्रेथ को y मान लिया. ओके, उसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है. फ्रेंड्स याद रखिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब क्या, द सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा. अब चारों साइड्स का एडिशन करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा. तो कितना होगा, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y. तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया 2x प्लस 2y हुआ. ठीक है, तो फाइनली मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई. ये पेरीमीटर है. हमें यहाँ पे पूछा है हाफ द पेरीमीटर. हाफ पेरीमीटर मतलब हमें हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2x प्लस वाई बाई 2, सो दैट विल बी x प्लस वाई. ये हो गया हाफ पेरीमीटर. ओके, हाफ पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई. वो आपको दे दिया है 36, हाफ पेरीमीटर दिया है 36. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बनेगा हाफ पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई, और वो कितना दिया है 36 मीटर. ओके, सो दिस विल बी 36. ये हो गया मेरा इक्वेशन 1. ओके, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये होगी मेरी सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है देखिए, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर. रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है. मतलब मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है कि आपको x लिख देना है, इक्वल टू कर देना है, y कर देना है. पहले आपको x इक्वल टू y लिख देना है जो आपने सपोज किया है. ठीक है, अब ज़्यादा कौन है, लेंथ ज़्यादा है. तो लेंथ कहाँ है, ये रही मेरी लेंथ. कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है. तो लेंथ कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर. लेंथ ज़्यादा है, इक्वेशन में हम किसको ज़्यादा कर देंगे, ब्रेथ को ज़्यादा कर देंगे. तो आप देख सकते हैं जो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा हो गई. सो क्वेश्चन क्या बन गया, इक्वेशन मेरा x इक्वल टू वाई प्लस 4. थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूँ. इफ आई सिंप्लीफाई दिस देन आई गॉट x माइनस वाई इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 36. इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 4. Friends, we got two equation and still we need to find the dimension. It means value of x and value of y. But friends, we have variety of methods to solve the equations. We have substitution method, elimination method, also graphical method. So any method you like, you can use here and find it. But still, I would like to find by elimination method because still we are not going to discuss here.
in next class we will discuss about, but we know what is a graphical method. Okay, so we will try for this. So x plus y equal to 36 first equation, second one is x minus y equal to 4. फ्रेंड्स रिमेंबर मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बताई थी ग्राफिकल मेथड्स के लिए, जो आपको समझ में आई हो तो आप वो कर सकते हैं, मैं अभी यूज़ करने जा रहा हूँ। लेकिन हमारी जो पुरानी मेथड है, जिंदाबाद मेथड है, जो हम तीन वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई वेरिएबल के लिए, आपको याद ही होगा, ठीक है। इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे, दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा टेबल बना लेंगे और क्या करेंगे, हम उसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, है ना। और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो आपका आंसर होगा। बट हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड है उससे अभी हम काम चला लेते हैं। ये तो मेथड आपको पता ही है, ओके। तो शॉर्टकट मेथड क्या थे, मैंने आपको बताया था कि x और y का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। देखिए पहले मैं ये इक्वेशन की बात कर लूँ तो हाँ 1 है, ठीक है। और RHS साइड पे भी 1 होना चाहिए, वहाँ पे अभी क्या है 36 है, वो ना चले, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 36, कोफिशिएंट तो 1 1 है, वो सही है। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए लेकिन 1 नहीं है, तो मैं क्या करूँ 36 से डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा। तो इसको भी 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, ये x बाई 36 प्लस y बाई 36 इक्वल टू 1। ईजी। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका छोटा सा मैं ग्राफ बना दूंगा। चलिए मैं ये इक्वेशन ए कह देता हूँ, सेम टू सेम मैं इसके लिए काम कर लेता हूँ इक्वेशन 2 के लिए, फिर हम ग्राफ एक साथ बनाते हैं। देखिए कोफिशिएंट 1 है, ओके, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, ओके, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4, चलिए 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x बाई 4 प्लस लिख दूँ और y बाई माइनस 4 लिखूँ तो चले, बिल्कुल चले, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो साइन है वो न्यूमरेटर के साथ ही गिना जाता है। फाइनली आप देख सकते हो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हो गया मेरा 1, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन बी। ओके फ्रेंड्स, मैं अभी के लिए ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना है। आई होप आपने नोट कर ही दिया होगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, बिल्कुल अप्रोक्स मेजरमेंट नहीं होगी मेरी, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सपोज कर लो पहला इक्वेशन हम इसको प्लॉट करते हैं, तो x पॉजिटिव x पे 36 लेना है, ये पॉजिटिव x है। सपोज करो कि पॉजिटिव 36 यहाँ पे है, ठीक है, और पॉजिटिव y पे भी 36 लेना है। सपोज करो पॉजिटिव y पे 36 यहाँ पे है, ठीक है। चलिए इसमें से लाइन निकाल दो, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये वाला हो गया, कौन सा है, ये वाला, x प्लस वाई इक्वल टू 36 का ग्राफ आप टेबल बना के भी ड्रॉ करोगे या प्रॉपर मेजरमेंट से करोगे, आपकी लाइन इस तरह से ही मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरा हम बना लेते हैं, पॉजिटिव y पे पॉजिटिव x पे 4, सपोज करो पॉजिटिव x पे 4 ये रहा, सपोज करते हैं, और y नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्या बता रही है, आपको नेगेटिव y एक्सिस पे जाना है, तो नेगेटिव y एक्सिस पे क्या लेना है आपको -4। सपोज करो ये y एक्सिस है, इसका नेगेटिव y ये है, इसका -4 सपोज करो यहाँ मिल रहा है मुझे, ठीक है। बस इसमें से पास हो जाए, इसे लाइन ड्रॉ कर दो, थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ये मिल गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इसके अकॉर्डिंग सामने जो x एक्सिस है और नीचे जो y है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो आपका प्रॉपर डायमेंशन है, जो आपको पूछा था कि रेक्टेंगल की लेंथ क्या है। तो रेक्टेंगल की लेंथ हमने x मानी है, तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट मिला, सॉरी यहाँ पे y मिलेगा, यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा। यहाँ पे सपोज करो कि मुझे मिल रहा है p और सपोज करो यहाँ पे मुझे मिल रहा है q, तो इसकी लेंथ बन जाएगी p और इसकी ब्रेथ बन जाएगी q। आप ये ग्राफ आपको आता ही है, मैंने इक्वेशन बना के दे दी। आप मैंने ये मेथड से समझ में आया तो ओके, अदरवाइज हमारे पास वो टेबल वाली मेथड तो है ही, उससे 3 सॉल्यूशन निकालेंगे और ग्राफ बनाएंगे, तो हमें इस तरह से ग्राफ मिलेगा। मैंने रफ वर्क किया है यहाँ पे, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप x और y कोऑर्डिनेट देख लेंगे, वही हमारे रेक्टेंगल के डायमेंशन हो गए। ओके ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके,
So friends, first we need to know that what is substitution method. This is also one of the important method of this chapter that we are going to discuss here. So friends, first I would like to discuss by some simple example. Suppose a plus b equal to p, this is one of equations, and c plus d equal to this is q, another equations. तो how to solve, क्या करेंगे हम? कोई भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन में से, सपोज यहाँ पे वेरिएबल सेम होगा, a प्लस बी इक्वल टू पी एंड a प्लस बी इक्वल टू क्यू. ओके, कोई भी इक्वेशन में से हम कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे. सपोज मैं ये इक्वेशन में से a की वैल्यू निकालूँ तो a इक्वल टू पी माइनस बी होगा कि नहीं? a इक्वल टू बी को इधर ला दूँ तो p माइनस बी बनेगा कि नहीं? तो पहले इक्वेशन में से मुझे क्या मिला? वैल्यू ऑफ a मिली. ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3. और अब मैं ये जो वैल्यू है a की वो मैं किस में डाल दूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में. तो इक्वेशन 2 में a की जगह पे क्या डालूंगा मैं? p माइनस बी प्लस बी इक्वल टू क्यू. ओके, जैसे मैं a की वैल्यू डालूंगा तो देखिए b और b कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपको p इक्वल टू क्यू मिल जाएगा. तो सेम टू सेम हमें क्या करना है? हमें जो यहाँ पे जो दो इक्वेशन दिए हैं उसमें से कोई भी एक इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में इनपुट करेंगे. जैसे कि हम यहाँ करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा हमें. देखिए, मैं ये दूसरे वाले इक्वेशन में से वैल्यू निकालता हूँ. किसकी निकालता हूँ? x की. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आई गॉट x इक्वल टू 4 प्लस वाई. ईजी. x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में से निकाल दी, x को सब्जेक्ट बनाया तो आई गॉट 4 प्लस वाई. दिस इज इक्वेशन 3. ये 1 2 और ये 3. पुटिंग x इक्वल टू 3, पुटिंग x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1. इन इक्वेशन 1 पहले नंबर के इक्वेशन में मैं x की जगह पे क्या लिख दूंगा? 4 प्लस वाई. तो पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, जिसमें x की जगह पे क्या डालूंगा मैं? 4 प्लस वाई. ओके, प्लस वाई इक्वल टू 14. ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 प्लस 2y, y प्लस वाई कितना होगा? 2y होगा इक्वल टू 14. सो 2y इक्वल टू 14, ये 4 को इधर ला दो तो -4 बन जाएगा. ठीक है, तो 2y इक्वल टू 14 minus 4 that is 10. So y equal to 10/2 that is 5. y मिल गया मुझे 5. बस ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा. ठीक है, पुटिंग y equal to 5 in equation 3. So I got x equal to 4 plus y. So 4 प्लस y की जगह पे क्या डाल दूँ? 5. So that equal to x equal to 9. These are the required solution of given equations. X equal to 9 and y equal to 5. Okay. Okay friends, look at the second example. What the same method we will do here. कोई भी एक इक्वेशन में से s और t दोनों में ये वेरिएबल है, यहाँ पे s और t इसमें भी दो वेरिएबल है. s या तो t की वैल्यू निकालेंगे कोई भी एक इक्वेशन में से और दूसरे इक्वेशन में इनपुट कर देंगे. लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए, ये इक्वेशन मुझे थोड़ा सीधा नज़र आ रहा है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है. तो सबसे पहले मैं उसको थोड़ा एलसीएम लेकर सीधा कर देता हूँ तो मुझे दिखने में थोड़ा आसान लगे. तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ. बनेगा s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6. फ्रेंड्स क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं तो क्या बनेगा? 2s प्लस 3t बाई 6 इक्वल टू 6. सो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36. इक्वेशन नंबर 1. ओके, और ये मेरा इक्वेशन 2 बना. यही सेम इक्वेशन है लेकिन मैंने एलसीएम लेकर उसको थोड़ा इसका डिनोमिनेटर हटा दिया और सीधा कर दिया. तो ये बन गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36. अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें से मैं s या तो t की वैल्यू निकाल देता हूँ. फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें से एक वैल्यू निकाल देते हैं. सपोज करो मैं s की वैल्यू निकालता हूँ तो s इक्वल टू 3 प्लस t आ गया इक्वेशन नंबर 3.
अब ये जो s की वैल्यू है ये मैं इक्वेशन 2 में रख दूंगा, मुझे t मिल जाएगा। ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने ये नोट डाउन कर दिया होगा, तो मैं अभी रफ कर लेता हूँ इसको, अभी ज़रूरत नहीं है, ये हो गया है। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, s की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। उसमें s की जगह पे हमें क्या डालना है, 3 प्लस t। ओके, सो 2 s की जगह पे लिख दिया मैंने 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। ओके, सो नाउ what to do, open this bracket, we will get 3 2s are 6 plus 2t plus 3t equal to 36। ओके, तो लाइक टर्म से 2t प्लस 3t कितना हो गया, 5t हो गया। लाइक टर्म से ये हो गया 36। नाउ दिस इज 5t, ये बन जाएगा 36 माइनस 6, क्योंकि 6 को इधर ला दो माइनस बन जाएगा। ओके, सो नाउ 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, दैट विल बी 30, and then t equal to 30 by 5, so t equal to 6 5 are 30, so t equal to मुझे क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब ये t की वैल्यू डाल दो आप, इक्वेशन 1 में डाल दो, आपको मिल जाएगा s। ओके, ठीक है, पुटिंग t equal to 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s माइनस टी की जगह पे क्या डाल दूँ, 6 इक्वल टू 3। सो s इक्वल टू 3 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो s इक्वल टू 3, 6 प्लस 3 दैट इक्वल टू 9। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ s एंड t। ठीक है, s इक्वल टू 9 आई गॉट एंड t इक्वल टू 6। तो फ्रेंड्स, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है इसमें, कोई भी इक्वेशन हो, हम 2 इक्वेशन हमारे पास हो गए, क्योंकि हमारा चैप्टर ही पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है, पैर में ही आएगा। तो हम कोई भी दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैंने ये सेकंड वाले इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल दी और बचे हुए इक्वेशन में रख दूंगा मैं, तो मुझे रिस्पेक्टिवली दोनों वेरिएबल की मुझे वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे s और t की वैल्यू मिल गई। ओके, सी यू।